Good evening, friends. I Ram Singh, legal advisor. Today have a very important topic that is on Indian Ombudsman and state Lokayuktas. The Ombudsman is an independent public official empowered to receive and investigate complaints of maladministration against government agencies and to recommend redress, and it has become widely adopted instrument of administrative accountability across democratic setup in the state and in India. The persistent problem of the bureaucratic unresponsive, जोर से पढ़ रहा हूँ, bureaucratic unresponsiveness, corruption and delayed grievance redressal have generated a long-standing demand for such an institution. इस इंस्टीट्यूशन में ड्रॉबैक कहाँ से आए हैं? ब्यूरोक्रेट। लोग चाहते नहीं हैं कि ओम्बड्समैन सफल हो, इसलिए एन इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन इनैक्टमेंट ऑफ द लोकपाल, जो ये इंस्टीट्यूशन आया था इनैक्टमेंट से आया था, लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013 and in the functioning of bodies such as the state lokayuktas and this Indian Ombudsman and the Central Vigilance Commission. Despite these developments, the question of whether a fully functional and independent ombudsman institution can be established and effectively sustained within the Indian governance, जो हमारा ये गवर्निंग सिस्टम है, गवर्नेंस का सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या इसको सफल होने देंगे, ये क्वेश्चन है. द ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड एंड इफेक्टिवली सस्टेन्ड विद द इंडियन गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिमेन्स अनसेटल्ड. अभी भी अनसेटल्ड है, जो हो नहीं पाया. लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ करके आंदोलन किए और आंदोलन के बाद आया भी तो हुआ नहीं कुछ. The present study undertakes a functional examination of the Ombudsman and evaluates its legal feasibility in India, with particular attention to legal institutions and practical conditions on which success would depend. जो practical conditions हैं और जो legal implication है, उनके दोनों के हर्डल पर, दोनों के बात पर ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी है और रुकावट भी है. The study pursues four principal objectives: to examine the concept, functions, and comparative experience of the Ombudsman institutions, to assess the compatibility of India's existing legal and constitutional framework with the establishment of such an institution, to evaluate the institutional capacity and practicality, viability, and operating an ombudsman within the Indian administrative structure, जो हमारा Indian administrative structure है उस पे, and to identify the reforms necessary to make the institution effective, और इसको effective बनाने के लिए comparative means बाहर के देशों से भी comparison करके लिया गया है. In pursuit of these objectives, the study also tests a central hypothesis concerning the relationship between institutional capacity and India's comparative readiness. दूसरे देशों की तुलना में हमारा रेडीनेस और हमारा जो इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, या गवर्नेंस का जो सिस्टम है, वो इसको देगा जगह या नहीं देगा जगह, इस पर जो The null hypothesis holds that there is no significant association between the institutional capacity. अगर हम null hypothesis की तरफ जाते हैं, to identify the reforms necessary to make the institution effective. In pursuit of these objectives, the study also tests the central hypothesis concerning the relationship between institutional capacity and India's comparative readiness. The null hypothesis holds that there is no significant association between the institutional capacity within the Indian governmental structure
and the support required for the functioning of an ombudsman compared to countries with similar socio-political context, while the alternative hypothesis asserts that such an association exists. कंपैरिजन करने का मतलब ये है कि जैसे है हमारे क्या हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स या हमारे देश के अधिकारी या कर्मचारी या गवर्नेंस को हैंडल करने वाले लोग प्लस जनता इसको और देशों की तुलना में एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, करती है या नहीं करती है, ये पर भी डिपेंड करता है. द रिसर्च एडॉप्ट्स ए क्रॉस सेक्शनल एंड डिस्क्रिप्टिव डिजाइन combining doctrinal analysis of the relevant legal framework with an empirical surveys of the informed stakeholders. जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ओम्बड्समैन का मतलब है लीगल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं सब इसके स्टेक होल्डर्स होंगे. प्राइमरी डेटा वर कलेक्टेड थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर्ड ऑनलाइन using a purposive sampling strategy to reach for categories of the respondent with direct knowledge of the administrative accountability, namely government officials and the policy makers, legal experts and practitioners, representative of the civil society organization and academics and researchers. Responses were captured on a 5-point Likert scale across four thematic dimensions: the legal framework of feasibility, institutional capacity, practical viability and sustainability, and recommendation and overall perception. ओवरऑल परसेप्शन क्या है लोगों के, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं और सिविल सोसाइटी, उन सब के साथ जो क्वेश्चनर लिए गए थे उनके हिसाब से क्या वायबिलिटी आई, उस बात की हम चर्चा कर रहे हैं. द डेटा वर एनालाइज्ड यूजिंग रिलायबिलिटी एनालिसिस. रिलायबिलिटी एनालिसिस को हम डेटे में के बेस्ड ऑन द क्रोनबच अल्फा फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल ढंग से उसको अरेंज किया. एंड द चाई स्क्वायर टेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग चाई स्क्वायर को यूज किया गया था. The reliability analysis confirmed that the measurement instrument was measuring instrument was internally consistent with all construct exceeding the accepted threshold. The descriptive finding revealed a mixed pattern of the stakeholders opinion. Stakeholders opinion जिसमें जज हैं, एडवोकेट हैं और जो भी प्रैक्टिसिंग लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं. Construct exceeding the accepted threshold, the descriptive finding revealed a immense pattern of stakeholders' opinion and regarded the legal establishment of an ombudsman as feasible but conditional. इसकी feasibility conditional आई. Recognizing that the constitutional order is broadly permissive. Constitutional order is broadly permissive. वो परमिशन करता है कि ombudsman होना चाहिए, ओम्बड्समैन हो, ओम्बड्समैन की जरूरत है. परमिसिव एंड एग्जिस्टिंग स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए यूजेबल फाउंडेशन. और जो हमारा स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट्स है, जो फ्रेमवर्क है, वो ये सजेस्ट भी कर रहा है कि यूजेबल फाउंडेशन है. मतलब यूजेबल फाउंडेशन से इसको अपलिफ्ट इसको क्रिएट किया जा सकता है और अच्छे से देश में फॉलो अप हो सकता है. वाइल आल्सो आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट लीगल गैप्स. जो लीगल गैप्स हैं, लीगल गैप्स क्या होते हैं, न्याय मिलता है लोगों को और नहीं भी मिलता है. देर से मिलने का मतलब नहीं भी मिलता है, बहुत लोगों को बहुत देरी हो गई. और कहीं कहीं पे जो क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां बहुत ज़्यादा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से फैसले ले लेते हैं. while also identifying significant legal gaps, uncertain independence, safeguards and risk of jurisdictional overlap with existing bodies. ओम्बड्समैन एक्ट में जो दिया हुआ है, जो एक्ट के हिसाब से इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप करता है और लोगों से, CIC से करता है, इवन की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भी करता है. The institutional dimensions emerge as the weakness and the most contested, with pronounced doubts about administrative capacity. Interagency cooperation
ओम्बड्समैन किस पे डिपेंडेंट है? सीबीआई पे, ईडी पे, या और भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उन पे, उन उन लोगों के जो रिपोर्ट्स आएंगे, जो रिकॉर्ड्स आएंगे, जिनके बेस पे उनको डिसाइड करना है, वो क्या कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। जो कोर्टों को सीबीआई और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं नहीं सुनती हैं, तो इनको कहाँ से सुनने जा रही है? ये भी एक फिजिबिलिटी का कारण हो सकता है। द इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन इमर्ज एज द वीकेस्ट एंड द मोस्ट कंटेस्टेड विद प्रोनाउंस डाउट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। इंटर एजेंसी कोऑपरेशन, इंटर एजेंसी अंदर के जो एजेंसी उनके साथ कोऑपरेशन, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्या ब्यूरोक्रेट्स क्या इसको पसंद करेंगे? हमारे देश में करप्शन को जहाँ पे एक रोज का गेम या रोज की रोटी हो गई है, वो उस पर कैसे लोग पसंद करेंगे? तो कोऑर्डिनेटेड एमंग दी प्रैक्टिकल कंसर्न दी परसीव्ड एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल बिल अट्रैक्टेड द लीस्ट फेवरेबल रिस्पांस। और सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल बिल नहीं है। Even as respondents strongly affirm the value of the institution and improving transparency and accountability. Transparency and accountability कौन लाएगा? ब्यूरोक्रेट लाएंगे, जो लोग वहाँ रखे जाएंगे वो लाएंगे। आता है या नहीं आता है, ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। द रिकमेंडेशंस डायमेंशन recorded the strongest support with respondent endorsing phased rollout. Constitutional status, embedded citizens participation and clear accountability standard for the institution itself, governance and public। ये दोनों अवेयर भी हो और दोनों को यूज करने का तरीका भी पता हो और इनका इस्तेमाल भी कर सकें, तभी तो उन्हें भी पता लगेगा कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये लगेगा कि ये तो हमारे ही पीछे घूम फिर के पड़ेगा। The hypothesis test produced a statistically significant result, leading the rejection of the null hypothesis। नल हाइपोथेसिस को तो जो भी सर्वे हुआ उस सर्वे के हिसाब से द हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस बननी चाहिए थी, द हाइपोथेसिस टेस्ट प्रोड्यूस्ड अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिया, लीडिंग टू द रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है, नल का मतलब इधर उधर दोनों में नहीं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए सजेस्ट किया सिग्निफिकेंट एंड मॉडरेटली स्ट्रांग एसोसिएशन वाज फाउंड बिटवीन रेस्पोंडेंट्स assessment of the institutional capacity and their judgment of the India's comparative readiness। जो उन्होंने क्वेश्चनेयर में जवाब दिए थे उसमें क्या था? असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है उस पर देयर जजमेंट ऑफ इंडियाज कंपैरेटिव रेडीनेस, जो इंडिया क्या उसके लिए तैयार है, और जो रिस्पोंडेंट्स, बिटवीन रिस्पोंडेंट के बीच में असेसमेंट इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी का जो ये क्वेश्चन है उस पे क्या रिस्पांस हैं, वो रिस्पांस किस दिशा को इंगित कर रहा है या इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेटिंग दैट द परसेप्शंस ऑफ द फिजिबिलिटी आर डिसिसिवली शेप्ड बाय द परसीव्ड एडिक्वेसी ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। जब तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं होगी, मीन्स ओम्बड्समैन के पास पूरी मशीनरी नहीं होगी, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ नहीं होगी, तब तक वो फिजिबल नहीं होगा। द स्टडी कंक्लूड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज वाइडली डिजायर्ड, और ये बहुत लोगों की अपेक्षा है। ब्रॉडली कंपैटिबल विद द लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिकली वर्थवाइल। कॉन्स्टिट्यूशन से, कानूनों से लगता है कि होना चाहिए और वर्थवाइल भी है, लेकिन बट दैट इट्स फिजिबिलिटी इज कॉन्स्टेंट अबव ऑल बाय वीकनेस इन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। उस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी में जो वीकनेस है, ओम्बड्समैन बनाया जाता है, गवर्नमेंट के लोग ही होते हैं, गवर्नमेंट ही अपॉइंट करने वाली होती है, और उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बट
that it is feasible its feasibility is constrained above all weakness in institutional capacity means institutional जो कैपेसिटी है उसमें वीकनेस है, एंड बाय डाउट्स अबाउट पॉलिटिकल विल, और एक डाउट और भी क्रिएट होता है कि पॉलिटिकल विल है ही नहीं। नेता कैसे आजकल बनते हैं, नेता कैसे हैं, कैसा शासन कर रहे हैं, कैसा शासन चाहते हैं, निरंकुशता उनको चाहिए, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होना चाहिए, उनको कोई पकड़े ना, उनका कोई करप्शन पे, हाँ मतलब करप्शन की तरफ ना उनको कोई इंगित करे, ना तो उनको पकड़ रखे, वो जो करना चाहें वो कर लें। तो इसलिए ये पॉलिटिकल बिल जो है ना वो ज़रूरी है। और हमारे यहाँ बात बहुत होती है लेकिन काम एक भी नहीं होता है। ना तो कोई पॉलिटिशियन हमें किसी पार्टी विशेष या किसी से नहीं, पॉलिटिशियंस में सब में होंगे, किसी में 40-50% होंगे, किसी में 60% होंगे, किसी में 90% होंगे, है सब में। वो लोगों ने इसको वीक कर दिया, उन लोगों ने वीक कर दिया। इंडियाज कंपैरेटिव रेडीनेस इंडिकेटिंग दैट द परसेप्शंस ऑफ द फिजिबिलिटी आर डिसिसिवली शेप्ड बाय द परसीव्ड एडिक्वेसी ऑफ द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। सजेस्ट स्टडी करती है कि डोमेस्टिक मीन्स अगर कोई सिस्टम बनता है या लोकपाल कोई इंस्टीट्यूशन के रूप में तैयार होता है तो उसकी खुद की अपनी एजेंसीज होनी चाहिए, खुद का इन्वेस्टिगेशन करने के लोग होने चाहिए, खुद में उनमें बिल होनी चाहिए, और वो निडर भी हो कि पॉलिटिशियन पे भी रोक टोक लगा सकें, पकड़ सकें, कुछ कर सकें। वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो वीकनेस को भगाना है, दूर करना है। द स्टडी कंक्लूड दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज वाइडली डिजायर्ड मीन्स जब तक पब्लिक बिल नहीं होती है तो उसको डिजायर्ड नहीं कहा जाता। इसकी डिजायर है लेकिन पॉलिटिकल बिल नहीं है और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी नहीं है। ब्रॉडली compatible with the legal framework and practically worthwhile, but that its feasibility is above all by weakness in institutional capacity and doubts about the political bill. Accordingly, the study recommends a capacity-centered strategy of reform, including the strengthening of the administrative readiness होना चाहिए, the enactment of the comprehensive enabling legislation होना चाहिए जो इसको enable करे। कौन पावर करेगा इसको, पावर कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट को किसने पावर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसको भी पावर दोगे, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पार्लियामेंट इसको पावर देगी, लेकिन पॉलिटिशियन जब देने देंगे तब तो। द एनेक्टमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव इनेबलिंग लेजिस्लेशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल entrenchment of institution to secure its independence, a phased implementation and embedding of the citizens participation and self accountability mechanism means जो इसके अंदर वीकनेस है, इंस्टीट्यूशन में जो वीकनेस है, उस इंस्टीट्यूशन की वीकनेस को दूर करने का मतलब उसके अपने सिस्टम हो, अपॉइंटमेंट के उसके अपने सिस्टम हो, और लोगों मतलब पूरे इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का, उसकी खुद की एजेंसी हो, उसके खुद के लोग सब जांच करें और ज्यूरिसडिक्शन ओवरलैप ना करें। साथ साथ बिल पावर उनमें भी होनी चाहिए और राजनीतिज्ञ जो लोग हैं उनमें भी बिल पावर होनी चाहिए कि इसको मजबूत करना ही करना है। अगर नहीं मजबूत करेंगे तो कोई कंट्रोल नहीं आ पाएगा। बाकी तो सीबीआई बहुत लोगों को ले जाती रहती है, ईडी में बहुत लोगों को जेल जाते रहते हैं, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। नट सेल में बोला जाए तो गवर्नेंस में सिस्टम जो है वो टोटली करप्ट है। पॉलिटिक्स में जो सिस्टम है वो भी करप्ट है। हमारे देश की जो जनता है अपेक्षा लगाती है उनसे, उनमें भी करप्शन है। इसलिए किसी देश से बड़ा बुरा लगता होगा, ये बुरा भी लगेगा, किसी देश से कंपैरिजन करना, पहले सिटीजन फर्स्ट हैव टू इम्प्रूव देयर ओन विलिंगनेस, उनकी भी इच्छा होनी चाहिए जज करने की। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, आज की डेट में रियल कौन है अनरियल कौन है पता नहीं, लेकिन जो लोग ऑनेस्ट हैं,
ईमानदार हैं, ईमानदारी से पढ़े हैं, ईमानदारी से जांच करते हैं, ईमानदारी से तर्क करते हैं, ईमानदारी से देखते हैं, वो ज़रूर पकड़ लेते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल बेईमानी हो, चाहे पॉलिटिक्स में बेईमान लोग हों, और चाहे ब्यूरोक्रेसी में बेईमान लोग हों, चाहे जुडिशरी में बेईमान लोग हों, जो भी ईमानदार होगा, सच्चा होगा, नेक हो, नियत होगा, उसका दिमाग साफ होगा, दिमाग में मैल नहीं होगी, वो पकड़ लेगा। और पकड़ लेगा, हो सकता है उसको दक्षिणपंथी और देशद्रोही और ये सब चीज़ भी बोला जा सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जो है ना, दक्षिणपंथी क्या जो भी वो होता होगा, लेफ्ट और राइट मैं नहीं जानता हूँ, ये सब ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा इसके पीछे लॉजिक यही था। ये तो एक लमसम में है, लमसम में मैंने एक आउटपुट और रिजल्ट बता दिया जो स्टडी ने किया है, और मैंने ही स्टडी किया है, इसलिए दूसरे का हमें किसी से वो परवाह नहीं है, परवाह हमें नहीं है। हमने खुद स्टडी किया है, मेरे पास अपने रिकॉर्ड है, मैंने अपने हिसाब से मैंने बोला है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को लगे अच्छा है तो लीजिए ज्ञान, दीजिए लोगों को तक, दीजिए लोगों तक और पहुंचाइए और लोगों तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।